As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. As for Wanda, Wanda was belonging to Boggins Height. Boggins Height, it is a hilly area where Wanda belongs to and stood alone in the school. Wanda mostly stays alone in the school. She has no friend to be accompanied by, and she scarcely ever said anything to anybody. And she doesn't speak to anybody. I mean, even she does not want to speak to anyone. She is completely silent most of the time. The only time she talked was in the schoolyard about the 100 dresses. Wanda, she only talks when the game of 100 dresses goes on. For example, most of the time she becomes silent. वो हमेशा शांत रहती है और वो तभी बात करती है जब उससे ये पूछा जाता है दैट हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं. मैंडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. मैडी को याद आता है her telling about one of her dresses. What pale blue colored trimmings, faded blue with colored trimmings, कढ़ाई जिसको कह सकते हैं. And she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. And another dress that Wanda had was brilliant jungle green with a red sash. You'd look like a Christmas tree in that. आप बिल्कुल उसमें क्रिसमस ट्री की तरह दिखाई देंगे. The girls had sad, pretended admiration. The girl had said, लड़की ने कहा, pretended, not real admiration, प्रशंसा. ठीक है, appreciation कह सकते हैं admiration को. Now, thinking about Wanda, her 100 dresses, Wanda के 100 dresses के बारे में सोचते हुए, all lined up in the closet, जो कि क्लोसेट में पूरी तरह से लाइंड अप है, सीक्वेंस में रखे गए हैं. एवरीथिंग हैज बीन अरेंज्ड वेल. मैडी बिगेन टू वंडर who was going to win the drawing and coloring contest. Now, Maddie began to wonder. Maddie began to think who was going to win the drawing competition or coloring contest. I mean, after some time, there was a contest which was going to be held in their school. Maddie was thinking about the result of contest, that who is about to win the contest. For girls, लड़कियों के लिए, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. लड़कियों के लिए क्या था? Designing dresses and लड़कों के लिए designing motorboats. ठीक है? Probably Peggy would win the girls medal. शायद हो सकता है, possibly Peggy would win the contest in girls. लड़कियों में हो सकता है मेडल पेगी को मिले. Peggy drew better than anyone else in the room. पेगी जो है वो सबसे अच्छा क्या करती है? ड्रू करती है, राइट करती है, लिखती है, डिजाइन करती है. मतलब शी इज अ ब्रिलियंट गर्ल आउट ऑफ हर क्लास. एटलीस्ट कम से कम दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट. सारे लोग यही सोच रहे थे कि इस बार पेगी ही कंपटीशन में जीतेगी. बिकॉज पेगी वॉज टैलेंटेड गर्ल, पेगी वॉज ब्रिलियंट गर्ल, Peggy was better than other girls in the classroom. So it was the expectation and thinking of every girl in the classroom that Peggy would be winner in the contest. She could copy a picture. अब Peggy के बारे में बताया जा रहा है कि Peggy जो है एक पिक्चर को कॉपी कर सकती है
in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. Peggy could exactly draw the picture or you know any shape of star's head एंड मैगजीन और सम फिल्म के किसी स्टार के हेड को या चेहरे को इस तरह ड्रा कर सकती थी सो दैट यू कैन टेल हु इट वॉज, आप बता सकें कि ये कौन सा एक्टर है या हीरो है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस को, तो मान लीजिए किसी को ड्रा करने को बोल दिया जाए कि अमिताभ बच्चन के चेहरे को आप ड्रा करिए, तो पैगी इस तरह से ड्रा कर सकती थी जिससे कोई भी बता सकता है कि हाँ ये पिक्चर अमिताभ बच्चन की ड्रा करी गई है। नाउ Oh, Maddie was sure Peggy would win. मैडी इस चीज से बिल्कुल श्योर थी, कंफर्म थी कि पैगी ही इस बार कंपटीशन जीतेगी। वेल, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। कल जो टीचर हैं वो रिजल्ट या विनर्स का डिक्लेरेशन करेंगे, दैट हु हैज ऑन द कॉन्टेस्ट। दे देन देयर नो, उसके बाद वो लोग जानेंगे कि कौन विनर है इस बार का। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वॉज डिजलिंग, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठीक है, लाइट रैन फॉलिंग। मैरी एंड पैगी hurried to school under Peggy's umbrella. Maddie and Peggy, both girls, they were going to school under Peggy's umbrella. It was owned by Peggy. Naturally, प्राकृतिक तौर पे, ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा, इस दिन उन्होंने वांडा का इंतजार नहीं किया, बिकॉज इट वॉज द डे ऑफ कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन, उस कॉन्टेस्ट के रिजल्ट का डिक्लेरेशन था। सो एवरीबडी वॉज इन हरी टू नो द रिजल्ट, अराइविंग फर्स्ट इन टाइम at school. The next day it was drizzling. Maggie and Patty, they were going to school in Peggy's umbrella. Naturally, nobody would like to get late on such a day when result is going to be announced. Petronsky on the corner of Oliver Street. Petronsky, वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो एक ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़ी थी। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे, वो गली जो बहुत ही दूर थी। अंडर द रेल रोड, और ये रेल रोड के ट्रैक्स के नीचे से होकर जा रही थी। एंड अप द हिल, और पहाड़ियों से होते हुए। लेट टू बॉगिंस हाइट, और ये कहाँ पहुंचता था रास्ता? बॉगिंस हाइट की तरफ पहुंचता था। आई मीन ये जो कॉर्नर था, स्ट्रीट कॉर्नर, आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो कॉर्नर है स्ट्रीट कॉर्नर का, ये इसी पे वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार किया करते थे दोनों बच्चे, आई मीन पैगी एंड मैडी। बट दैट डे, उस दिन, दे डिडंट वेट फॉर हर, उसके लिए वो इंतजार नहीं करते हैं, बिकॉज इट वॉज द रिजल्ट डे। नाउ दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑफ बीइंग लेट टुडे, उस दिन वो लेट नहीं होना चाहते हैं, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट। इट वॉज अ great day, you can say. It was a day when they had uh, to get the result regarding their this is the next page. Do you think Miss Mason, क्या आपको लगता है मिस मैशन will announce the winners today? asked Peggy. Peggy ने कहा, क्या लगता है तुम्हें कि आज मिस मैशन रिजल्ट अनाउंस करेंगी? ओह, आई होप सो, मुझे भी ऐसा लगता है। द मिनट वी गेट इन, said Maddie. Of course you will win, Peg. Maddie says to Peg. Peggy, short name है Peg. Of course you will win. तुम जीत जाओगी Peg, because you draw wonderful design. तुम बड़ी अच्छी पेंटिंग कर लेती हो, डिजाइन कर लेती हो, तो तुम ही कॉन्टेस्ट जीतने वाली हो। होप सो, सेड पेगी ईगरली, बड़ी उत्सुकता से, क्यूरियसली, पेगी रिप्लाइज, होप सो, आई थिंक सो, आई विल विन द कॉन्टेस्ट, मैं कॉन्टेस्ट जीत जाऊंगी।
the minute they entered the classroom. उस समय when they entered into the classroom, they stopped short and gasped. वो थोड़ी देर के लिए रुक गए. There were already drawings all over the room on every lace and windows sill. Up, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping papers. Up, as the moment when they entered into the classroom, they were shocked watching a poster that was well and fantastically drawn and designed. All the colors were brilliant, lavish designs, all drawn on a great sheet of wrapping paper. मतलब बहुत ही स्मूथ तरीके से उस चार्ट पर, उस पेपर पर डिजाइन करी गई थी. देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और लगभग उस चार्ट पेपर पर 100 ड्रेसेस का स्ट्रक्चर ड्रा किया गया था, बनाया गया था. एंड ऑल लाइंड अप, और सारा कुछ लाइंड अप था, बिल्कुल एक रो में था. These must be the drawings for the contest. ये जो ड्राइंग थी, it must be for the contest. Somebody has drawn the design for the contest. They were, everybody stopped and whistled or murmured admiringly. Admiringly appreciating the design, everybody was whispering, having talk with each other slowly. यार किसी ने बड़ा गजब का बनाया है, वाह, मान गए. Admirable, fantastic, lovely, well designed, well colored, सब कुछ. I mean, बड़े तरीके से और अच्छे तरीके से वो पोस्टर बनाया गया था. और ये स्टेटमेंट आप जानते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है? 100 ड्रेसेस. ये जो 100 ड्रेसेस जो स्टेटमेंट है वो इसका है, वांडा का है. किसका है? Wanda Petronski. Now this is the imagination that was going in her mind most of the time when somebody asks her that how many dresses do you have. She replies that 100. 100 मेरे पास ड्रेसेस हैं. और यही वो इमेजिनेशन था जो वांडा पेट्रोन्स्की के दिमाग में चलता रहता था. अब आगे देखते हैं. As soon as the class had assembled, जैसे ही क्लास इकट्ठा हुई, मिस मैशन अनाउंस द विनर्स. मिस मैशन जो थी, जो टीचर थी, उन्होंने विनर्स का नाम अनाउंस किया. जैक बैगल्स हैड ऑन फॉर द बॉयज. शी सैड, उन्होंने बताया कि जैक बैगल्स है, कोई लड़का था जिसका नाम क्या था? जैक बैगल्स था. वो लड़कों में विनर था, विजेता था. एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड, और उसकी जो डिजाइन थी एक आउटबोर्ड की तरह, मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12. और एग्जीबिशन, प्रदर्शन, जो कि रूम नंबर 12 में वो लड़का किया था, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज. और उस पोस्टर में स्केचेस थे, स्केचेस which is drawn with the help of pencils. It is known as sketch. जैसे परछाई की तरह स्केचिंग होती है, तो बहुत सारे बॉयज भी थे, मोटर था वहाँ पे. इस तरह का एग्जीबिशन उस पोस्टर पे बनाया गया था कि बहुत सारे बॉयज थे, खड़े हैं पोस्टर में, और आउटबोर्ड वहाँ पे पड़ा हुआ है. तो ये एक ड्राइंग थी लड़के की, जिस लड़के का नाम है जैक बेगल्स. वो लड़कों में विजेता है. एज फॉर द गर्ल्स, शी सेड, जैसा कि लड़कियों की जब बात आई तो उन्होंने बताया कि लड़कियों में कौन है जो विजेता है. तो she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, बहुत सारे लोगों के द्वारा सिर्फ 1 या 2 तरह का स्केच सबमिट किया गया. I mean, when a competition or contest or question answer, any kind of assignment is given to the students, they try to take assistance, help with each other. They copy the same, एक दूसरे का कॉपी करके थोड़ा सा डिफरेंट करके ला के दे देते हैं. लेकिन जो बच्चा खुद का क्रिएशन करता है,
सारी क्रिएटिविटी उसकी खुद की होती है. He doesn't copy and have a talk regarding that assignment to anybody in the classroom. He does different than others. वो लोगों से बिल्कुल हट के करता है. वांडा पेट्रोंस्की जो थी वो किसी से बात नहीं करती थी. She doesn't take any idea with anybody else. किसी के साथ उसका कोई आइडिया का शेयरिंग नहीं था. तो उसकी जो ड्राइंग थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी. बाकी सारे लोग एक दूसरे से चैट करके चपड़ चपड़ करके एक दूसरे, तुम क्या बना रही हो, ये बना रहे हैं, थोड़ा दिखाना कैसे बना रही हो, ऐसे बना रहे हैं. सो ऑल द गर्ल्स कॉपीड ईच अदर, एक दूसरे को कॉपी की थी. लेकिन वन गर्ल, एक लड़की, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, बड़ी गजब की ड्राइंग करी है. दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस. इस लड़की ने वास्तव में 100 डिजाइन्स प्रस्तुत किए हैं. उसमें एक दो की तो बात ही छोड़ दीजिए. 1 and 2 are nothing, कुछ नहीं है. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारा कुछ बिल्कुल अलग अलग है और बहुत ही सुंदर है. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जजेस के ओपिनियन की बात करें, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज. Anyone, even a single drawing of that girl is enough and worthy of winning the prize. इस प्राइज को जीतने के लिए उस 100 ड्रेस में सिर्फ एक ही काफी है जीतने के लिए. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. Wanda Petronsky was the winner. ये विजेता है, ये जो लड़की है यही विनर है for the girls medal. लड़कियों के मेडल की जहां तक बात है तो वांडा पेट्रोंस्की हैज ऑन द मेडल. वाओ, फैंटास्टिक, वंडरफुल. यस, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य, वांडा हैज नॉट gone to the school that day. She was absent for some days. कुछ दिनों से जो वांडा पेट्रोंस्की है वो अब्सेंट थी. अब ये कहानी का टर्न है, काफी मेस्मराइजिंग है. बहुत ही बेहतर एंडिंग दिया हुआ है इस चैप्टर का, इस पार्ट का, कि वो लड़की कुछ दिनों से अब्सेंट थी, स्कूल नहीं जाती थी. समवेयर देयर वर सम रीजंस, हो सकता है कुछ कारण रहे हों जिसके कारण वो बच्ची स्कूल नहीं आती थी. And Daisy is not here to receive the applause that is due to her. और वहां पे उसके absence के कारण, अनुपस्थिति के कारण वो उस applause को accept नहीं कर सकती थी. Let us hope she will be back tomorrow. हो सकता है वो कल आ जाए. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. Extremely beautiful and well made. बहुत ही प्यारे डिजाइन्स उसने बनाया है. सारे लोग उस चीज को देखे जा रहे थे और उसको विनर घोषित किया. द चिल्ड्रेन बर्स्ट इनटू अप्लॉज. सारे बच्चे बहुत ही बधाई, कंग्रेचुलेशंस, अप्लॉज, क्लैपिंग and so many appreciation was being given to Wanda Petronsky for her work. And even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle. सारे बच्चे खुशी से whistle कर रहे थे, सीटी बजा रहे थे. So though they were not interested in dresses, भले ही वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे. होता है when we do not show our interest in something and somebody has shown the interest and did well, और बहुत अच्छा किया, तो हम उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते. Look, Peg whispers Maddie. Maddie ने कहा पेग से, there is that blue one she told us about. वो ब्लू ड्रेस भी है जो हम लोगों को बताया करती थी. इट्स ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा है. Yes, said Peggy. Peggy ने कहा, हाँ सही है. And there is that green one. और देखो वो ग्रीन वन भी है. Why? And I thought I could draw. मुझे लगा था कि मैं इस चीज को कर सकती थी, बट ऐसा नहीं है. ठीक है, कुड पॉसिबिलिटी, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं बना सकती हूँ, लेकिन वांडा पेट्रोंस्की ने इस चीज को करके दिखाया है. अब आगे का जो पार्ट है
वो इन बच्चों के कॉन्फेस करने का है, रिग्रेट करने का है कि ये दोनों बच्चियां जो उसको परेशान करती हैं, उस चीज का इन सबों को एहसास होता है. दे रियलाइज्ड द मोमेंट और द न्यूसेंस which they often did with Wanda Petronsky asking 100 dresses, how many dresses do you have? They realized their mistakes, okay? And they realized their mistakes, that they should have not done such behave with Wanda Petronsky. Somewhere she was replying us on the basis of this imagination. She was drawing. वो इस चीज के बारे में ही सोच सोच के रिप्लाई किया करती थी कि मैं 100 ड्रेसेस, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, ठीक है. तो वो बच्ची इसी बेस पर रिप्लाई किया करती थी. अब आगे अगले पार्ट में क्या होता है ये हम जानेंगे. तब तक कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ लेंगे और इस चीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can ask me. That's it for this video.